الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ بارک وسلم. یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ میں 4 بجے تک اسٹیج پر بیٹھا ہوں. کیا کروں، حضور مفتی صاحب کا حکم کہ آپ رکیے اور کچھ بول دیجئے، ورنہ ہم لوگ مدرس ہیں، اگر نیند کا غلبہ آتا ہے تو سب گم ہو جاتا ہے. بہرحال حضور مفتی اعظم الہ آباد، انتخاب سرکار مفتی اعظم ہند اور کرامت غوث اعظم کا نام حضور شفیق ملت ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور کچھ مفہوم سے بات کر لیں تو میں تقریر ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. میں جب کہیں بیٹھتا ہوں کوئی بات بہت توجہ سے سنتا ہوں. حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب اللہ نے اپنے شاگرد، آپ مجھے دیکھیں، حضور صوفی ملت کی تعریف کی. آپ نے سنا؟ اچھا، اگر میں تعریف کروں تو ٹھیک ہے، میں ان کا خلیفہ ہوں، لیکن یہ تو استاذ ہے نا. اور جب استاذ شاگرد کی تعریف کرتا ہے تو شاگرد زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. آپ یقین مانیں کہ حضور صوفی ملت کو ان پر بہت ناز تھا. میری ملاقات ہوتی رہتی. یہ خانقاہ صرف خانقاہ نوریہ نہیں ہے، یہ خانقاہ رضویہ بھی ہے، خانقاہ ضیائیہ بھی ہے، خانقاہ غوثیہ بھی ہے، خانقاہ چشتیہ بھی ہے اور خانقاہ شفیقیہ بھی ہے. میں نے پڑھا ہے کہ شاگرد اگر کسی لائق نہ ہو اور وہ استاذ کرم کر دے تو شاگرد سورج کی طرح چمکتا ہے. میں بیٹھ کے سب یہی سن رہا تھا کہ حضور مفتی صاحب آج ماشاءاللہ اپنے شاگرد کو خوب نواز رہے ہیں. اس لیے نواز رہے ہیں کہ ان کے ذریعے یہ چمکتے ہیں اور ان کے ذریعے ان کی خوشبو دنیا میں پھیل رہی ہے. حضرت نے کچھ نصیحت آپ کو یہ کی کہ یہاں سے ہمیشہ آپ لگے رہنا. تو اگر آپ لگے رہو گے تو فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا فائدہ ہے. اس لیے کہ خانقاہ چمکتی ہے، چمکے گی. آراس ہوتے ہیں، ہوں گے، کوئی آئے چاہے نہ آئے، لیکن جس کو پیر بلا لے بہت بڑا خوش نصیب ہے. اور آپ کو شاید نہیں معلوم ہے کہ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب پیر، ان کا نام تھا سید ابو الحسین نوری. کہاں کے؟ مرحرہ شریف کے. بہت توجہ سے میری بات سننا. ان کے سجادہ بنے سید مہدی میاں صاحب. سید مہدی میاں صاحب جو ہے پابند نماز کے تھے، لیکن چاشت نہیں پڑھتے تھے، اوابین نہیں پڑھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے. تو کچھ مرید ہوتے ہیں نا کہ وہ سجادہ میں کمی نکالتے ہیں. توجہ سنیے گا کہ حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو خبر نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے واقعہ سنانے جا رہا ہوں. تو
तो हजरत सैयद अबुल हुसैन नूरी का जो मुरीद था वो बहुत पाबंद था शरीयत का, वो बड़ा ही तनकीदी नज़रिया रखता था, हरदम तहकीर करता था, हमारे सज्जादा ऐसे हैं ऐसे ऐसे। तो उसने ख्वाब देखा कि मैं मारहरा जा रहा हूँ, बीच में एक नदी है, दरिया है, उसे पार करना है। मैं खड़ा ख्वाब देख रहा है, तो देखा कि एक बुजुर्ग दूर कपड़ा धुल रहे हैं उसी नदी के किनारे। अब ये गया तो पीर कैसी हालत में हो मुरीद पहचान लेता है ना, पहचान गए मेरे ही पीर हैं। कहता है पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो से बात सुनना। तो उसने सोचा शायद हजरत ने मेरा सलाम सुना नहीं, उधर गया, हजरत अस्सलाम वालेकुम, फिर जवाब नहीं दिया। तो मुरीद कदमों पे गिर गया। कहा सरकार मैंने कोई खता की है? कहा हाँ तुमने खता की है। क्या खता सरकार? मैं नमाज का पाबंद हूँ, रोजे का पाबंद हूँ, कुरान की तिलावत का पाबंद हूँ, आपके वज़ाइफ जो दिया उसका पाबंद हूँ, फिर क्या खता हुई? फरमाते हैं तू सब पाबंदी करता है लेकिन मेरे सज्जादा से तेरे दिल में कुदूरत है, तू मुझे पसंद नहीं है। और सुन जो मैं कपड़ा धुल रहा हूँ कपड़ा नहीं है, ये तेरे गुनाह धुल रहा हूँ, तू गलतियां कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाओ, जो मुरीद पाबंदे शरा है लेकिन अगर सज्जादा में थोड़ी सी कमी देख रहा है तो पीर उससे नाराज है, और पीर नाराज है तो कुछ फैज नहीं मिल सकता है। सुन लो, एक टरक फूल चढ़ा दो, हजारों दिए नियाज खिला दो, लेकिन अगर पीर नाराज है सारा फैज खत्म। और एक 5 रुपए का फूल लाके चढ़ा दो, पीर राजी है तो मदीना में फूल कबूल हो जाता है। इसलिए खबरदार खबरदार, कभी भी खानकाह के ताल्लुक से कोई दिल में मैला गोशा मत लाना। और वो बेवकूफ मुरीद हैं, उस खादिम की खिदमत बेकार है, उस खादिम की अकीदत बेकार है जो साहिब सज्जादा को सही नहीं मानता है। इसलिए कि अगर सूफी मिल्लत की रज़ा ना होती तो बनते सज्जादा? बोलो, गद्दी मिलती? उनके वस्ताज हुजूर मुफ्ती साहब की इंतखाब हैं, मेरे पसंदीदा हैं, और वलमा जिसको पसंद कर लें वो यकीनन सही है। वलमा गलत को पसंद कभी नहीं कर सकते हैं। और इनकी खिदमत आप क्या जाने, सुनिए इनकी खिदमत ऐसी मुफ्ती साहब की, इनकी किताबें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इनके फतावे अरबो अजम में पढ़े जाते हैं, और इनके फतावों पर हम लोगों को एतमाद है कि हजरत ने कलम उठा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सही ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके वस्ताज कौन है आप जानते हैं? शारह बुखारी अल्लाह मुफ्ती शरीफ लख साहब, जो अशरफिया के बड़े मुफ्ती थे, इंतकाल फरमा गए हजरत। वो हजरत पर नाज करते थे, उनके भी हजारों शागिर्द थे लेकिन इनको ज्यादा चाहते थे। वजह बताऊं? सुनिए, जो शागिर्द अपने दिल में वस्ताज से बहुत अकीदत रखता है, वस्ताज का एहतराम करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शागिर्द कभी फेल हो ही नहीं सकता, बल्कि वो पूरे असातिज़ा जो सिलसिले के असातिज़ा होते हैं सब पर उसकी नजर इनायत रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शारे बुखारी के मुंतखब हैं। हुजूर ताजुश शरिया पर इनको नाज था। आप जो नारा लगा रहे हैं ताजुश शरिया, इनको आप समझें, उनको इन पर नाज था। और आपने ताजुश शरिया ने हजरत मुफ्ती साहब को इलाहाबाद का काजी बनाया था। क्या और आलिम इलाहाबाद में नहीं थे? क्यों उनको बनाया? इसलिए बनाया कि इनकी सलाहियत, इनकी पाबंदी, इनके कलम की पुख्तगी, इनका इल्म, इनकी अकीदत पीरो मुर्शिद से अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर कामिल है कि जमाना एक तरफ, मुफ्ती शरीफ साहब एक तरफ। वस्ताज बहुत देर तक सरकार सूफी मिल्लत को नवाजते रहे। नारे तकबीर। उनके मसलके आला हजरत
फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको ज्यादा फैजान चाहिए? फैजान चाहिए नहीं चाहिए? बोलो यार, हैं? चाहिए ना? तो उसका नुस्खा बता दूं आपको। उसका तरीका ये है कि आप साहिब सज्जादा से खूब मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह भरपूर फैजान आप पर बरसेगा। और मैं हूं जात का पठान मौलाना, सुनो, मैं खान हूं, और खान जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता है। खान में आलिम कम होता है, लेकिन होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है, ये इनका बड़कपन है। मैं खुद इतना थका हुआ हूँ कि मैं ना बोल रहा था, लेकिन अब नहीं बोलना है, 5 मिनट बोलना है, इसलिए बोल दे रहा हूँ मैं कि मुफ्ती साहब क़िबला जो है हम लोगों के लिए यकीनन आला हजरत के फैज़ान हैं, मुफ्ती आज़म की करामत हैं, और शारे बुखारी की अजीम नेमत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार सूफी मिल्लत ज़िंदगी भर इनसे राज़ी थे, फ़ख्र करते थे, फ़ख्र। अच्छा ये बताओ, जाकनी के आलम में कोई किसी को कब याद करता? अगर आखिरी वक्त हो किसी का और किसी बार बार याद करे, कब याद करता? जब उसका पूरा एतमाद उस जातो शख्सियत पर हो। मैं खुद बीमार था, हजरत के इंतकाल में बहुत बीमार था मैं। इन हजरात की दुआओं से जिंदगी मिली, सेहत मिली, आज मैं हाजिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाजे में आपने मुझे नहीं देखा होगा, मैं बहुत बीमार था। मैंने ये सुना है कि हजरत सूफी मिल्लत बार बार कहते थे कि हुजूर मुफ्ती साहब को फौरन बुलाओ, उनको इत्तला करो, उनको फ़ोन करो कि आए मेरे पास। ये इतने आशिक थे कि अगर शफीक मिल्लत का फ़ोन कभी आ जाता है, फ़ोन करते तो बगैर चप्पल पहने बात करते थे। इनसे जब बात करते सूफी साहब चप्पल नहीं पहनते थे। वाह जनाब, ये तो एहतराम मदीना का है, एहतराम तो मक्का का है। सूफी मिल्लत आप इस कदर इनसे मोहब्बत करते हैं कि गुफ्तगू करते वक्त इलाहाबाद में आप, मध्य प्रदेश में आप चप्पल नहीं पहनते, वजह क्या है? फरमाते हैं सब कुछ मुझे अगर मिला है तो इन्हीं से मिला है। दूसरी बात यह है कि वस्ताज ने सूफी मिल्लत की तरफ से सदक़े का हुक्म दिया। पैसा इनका था, सदक़ा उनके नाम हो रहा था। कुछ समझा आपने राज? राज ये है कि सूफी मिल्लत की खिदमात इतने थे कि वस्ताज को शागिर्द पर नाज है। इसलिए आप हजरात यहाँ से जुड़े रहना। जो अकीदत पहले थी अब अकीदत बढ़ा दीजिए, इसलिए कि जो जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जिस्म पिजड़ा है, रूह परिंदा है। कभी तोता देखा होगा आपने, पिजड़े में बंद रहता है तो फड़फड़ाता है, उसी में रहता है, कैद रहता है, और जैसे छूटता है फौरन उड़ता है। तो उलमा फरमाते हैं कि जो मुक़द्दस रूहें हैं, पाकीज़ा रूहें, जिस्म में वो मुक़य्यद हैं, और जैसे ही इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला उस रूह का मकाम और बुलंद फरमा देता है। इसलिए हिंदुस्तान में, अरबिस्तान में जहां जहां भी सूफी मिल्लत की मुरीद है, मेरा पैगाम पहुंचा देना कि अब फैजान इनका और ज्यादा आमोताम हो गया। डायरेक्ट इनसे आप फैज लीजिए, लेकिन शर्त है कि सज्जादा की, खानकाह की, यहाँ की आप बुराई कभी ना करें, ना कभी बुराई सुनना पसंद करें। आप सुन लीजिए। इसलिए हमेशा अकीदत से, एहतराम से, मोहब्बत से रहिए। अल्लाह ने चाहा तो दौलत भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी। तो अगर जन्नत चाहिए तो यहाँ से ज्यादा करीब रहिए। हजरत का और क्या पैगाम था सूफी मिल्लत का? कुछ याद है आप लोगों को? पैगाम ये था कि आप लोग
मसलक आला हजरत पे खूब सख्ती से कायम रहिए। पैगाम था ना। तो इनको राजी करना है तो वहाबियों देवबंदियों से रिश्ता मत करना। अगर कोई आपका पीर भाई कर रहा है तो उसका भी साथ छोड़ देना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। मध्य प्रदेश के पीरों को हजरत बहुत चाहते थे, सूफी मिल्लत बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते। तो रात को 2-2 बजे कभी इनका फोन मेरे पास आ जाता था। हजरत क्या बताए, एक मुरीद हमारा है वो देवबंदियों का खाना खा लेता, मैं क्या करूं। इनको कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई मुरीद देवबंदियों से मिलता जुलता है हजरत तकलीफ नहीं होगी हैं? आला हजरत का मिशन तो ये है जैसे दूध में मक्खी पड़ जाए आप मक्खी निकाल दो, ऐसे अगर क्यों देवबंदी अगर कोई सामने आ जाए तो उससे चेहरा फेर लो, न सलाम का जवाब दो न उससे मुस्कुरा कर मिलो, इसलिए कि उससे दुश्मनी करने से नबी राजी हो जाते हैं और सुन्नियों से दोस्ती करने से आका राजी हो जाते हैं। इसलिए अगर चाहे तो पीर राजी रहे, रिश्ता कभी देवबंदियों से मत करना, वहाबियों से मत करना, और ना कभी मुरीद जो हजरत के इधर उधर बिखर गए हैं, सुन लो पैगाम, मैं बार बार कहता हूं, उनको कभी अपने पास मत आने देना। जो पीर के दर से भागता है दुनिया भर में भागता है वो, और जो जुड़ा रहता है उस पर मदीना की बहारें आती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, वो हर जगह कामयाब रहता है। नारे तकबीर, नारे इस्सारत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सूफिये मिल्लत, हुजूर सूफिये मिल्लत, कादरी दूल्हा, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे इस्सारत। जब भी आपका कोई प्रोग्राम हो, ये तकरीर नहीं, ये पैगाम और नसीहत है, कोई भी प्रोग्राम हो, शादी का हो, मकान बनाने का हो, मकान खरीदने का हो, तो पहले इजाजत आप यहां से लें, साहिब सज्जादा से। इजाजत हो तो करूं, ना हो तो ना करूं, फायदा जानते हो। इनकी इजाजत सूफी मिल्लत की इजाजत है। इन्होंने अगर हां कह दिया तो फिर आपका मिशन कामयाब है, बरकत ही बरकत है, वो आदमी कामयाब हो जाएगा। अगर ना बोल दे तो मत करना। और रिश्ता करने के बाद, मकान लेने के बाद, दुकान चलाने के बाद अब क्या मशवरा करो, मशवरा पहले करो। और जैसे हजरत मुफ्ती साहब हुजूर सूफी मिल्लत के पसंदीदा महबूब आलिम थे, हजरत को इन पर नाज था, ऐसे आप भी इनसे करीब रहिए, मसला पूछिए, दस्तबोसी कीजिए, दुआएं लीजिए, इसलिए इनकी खुशी सूफी मिल्लत की खुशी है, कोई शुबा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हजरत शफीक मिल्लत पर नाज है, इसलिए कि मैं इनके जिला का रहने वाला हूँ, वतन इनका हमारा बिल्कुल करीब करीब है। नाज ये है कि हमारे वतन का कोई आलिम आलमगीर लेवल पे आलिम है, दुनिया लेवल पे आलिम है, वो हर जगह नाम इनका है, ये सब सदका है, इनके असातिज़ा की दुआएं हैं, गौसे आदम का इन पर करम है। जो कादरी सिलसिले का शेर होता है वो हर जगह कामयाब रहता है। हमारा आपका सिलसिला क्या है, कादरी है हम, और कादरी मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में कामयाब रहता है। इसलिए मैंने कहा था कि इस वक्त नूरी नगर में सिर्फ फैजान सूफी मिल्लत का नहीं है, फैजान गौसे आदम भी है, फैजान गरीब नवाज भी है, फैजान मदीना भी है। इसलिए इनको खिलाफत और हजरत को वहां भी मिली है ना, अल्लाह मारिफ ज़ियाई की खिलाफत मिली है ना। तो अगर खिलाफत कहीं रहती है तो मखसूस जो वहां के पीर होते हैं उनकी खास नजर होती है। तो फैजान मदीना का भी है, बगदाद का भी है, और शहर बरेली का भी है। आप नसीहत याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे करीब रहें, हमेशा हमेशा राय लें, मशवरा लें, दीन पर कायम रहें, मसलक पे कायम रहें,
اور آپ صوفی ملت کی جگہ ان کو سمجھیں، اور دینی بات آئے تو حضرت مفتی صاحب سے آپ. ایک پاگل مرید تھا حضرت کا، مجھے حیرت ہوئی، وہ بیوقوف دوسرے سے فتویٰ لے رہا تھا. اتنا مجھے غصہ لگا، یہ شخص محروم رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا. جو مفتی صاحب حضرت صوفی ملت کو فتویٰ دیتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ تو اس کو خبر تھی حضرت مفتی صاحب قبلہ کبھی بھی خانقاہ کے خلاف فتویٰ دے ہی نہیں سکتے ہیں، نہ سید صاحب کے خلاف دے سکتے. اس لیے بھاگ رہا تھا، وہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا، آخر میں آ کر معافی مانگنی پڑی. اس لیے حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ صوفی ملت کے خلفاء بھی ہیں، ان کے یہ حضرت داماد بھی ہیں، صاحب سجادہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ استاذ بھی حضرت کے زندہ ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی الحمدللہ ہے. تو جو ان کا پیغام جائے، یہ حضرت نصیحت کرے، اس کو مانو، عمل کرو، بس یہ میری نصیحت ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو صوفی ملت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں آپ کو شرابور کر دے، اور قدم قدم پر ان کا فیض ہم کو ملتا رہے. اور سب سے خاص دعا ہے کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.